चलिए तो बच्चा लोग अब हम लोग इस चैप्टर के फाइनल पार्ट में एंटर कर रहे हैं. इन दिस लास्ट पार्ट टुडे we will be dealing with population interactions. Okay, how do different population interact with each other? So whenever there is an interaction, there may be two chances. First, there is a positive interaction. Second, there is a negative interaction. So what do you mean by positive interaction and negative interaction? Positive interaction means either both of them are getting benefited with this interaction, or one is benefited while other is neither in profit nor in loss. Okay, so these are the types of positive interaction. Now again, uh, there is negative interaction. Negative interaction means either, okay, again, negative is of three types. Either both of them are being deteriorated, means both of the species which are interacting is in loss. Second is one is in loss, one is in neither profit nor loss. And third is uh, one is being profited while other is being in loss. Okay, so negative has three types. First, both are in negative. Second, one is in profit, second is in loss. Third, one is in loss, the other one is having no effect. So let us begin. The first in negative interaction is competition. Competition is a type of population interaction in which two similarly, you can say, similar types of species. In this, two similar types of species interact with each other. Now, competition is only there when both of them are similar. Means competition दो इंसान के बीच में हो सकता है, दो देश के बीच में हो सकता है, दो प्लैनेट के बीच में हो सकता है. एक आदमी और एक देश के बीच में कंपटीशन हो सकता है? नो. कंपटीशन इज ओनली इन इक्वल स्टेट. ओके, सो competition is between species. So in this process, one species has a higher fitness and other species has significantly lower fitness. Now what do you mean by this fitness? This fitness is Darwinian fitness. Darwin said that fitness means the ability of a species to reproduce. The more a species can reproduce, the more fit it is. Okay, so now again, there are some examples. First is plants and herbivores are more affected than carnivores in this competition. So sometimes there may be seen that it can also occur, may means not always, it can occur between totally unrelated species. When the, but mind it, this too happens when they compete for the same resources. For example, humans also need more land to live in, while take an example of lion. Lion also needs more land to live, more area in the jungle. So there is competition between human and lion, but when it comes about the land, the area, we want to uh, intrude ourselves into the forest area and make and convert it into either in agricultural land or in some factory or some kind of human settlements. But any of thing is not that good. Why? Because in the same way you require land, lion, tiger, or any other animal also requires its space so as to survive, so as that it may have adequate amount of land so that it can find its food, find its mate, survive itself. Okay, so it can be in between two totally unrelated species, but this happens when they compete for the same resources. So again, look at this example: competition for zooplankton. Zooplankton are the types of plankton: kai, algae. I guess
much more smaller than algae. Algae is a plant while zooplankton is an animal. So, competition for zooplankton between visiting flamingo and resident fishes in South American lake. So, the flamingo also feeds upon this zooplankton, while the fishes which reside in the American lake, South American lake, also feeds upon the fish. Feeds upon the zooplankton. So, there is always a competition between these flamingo and these fishes, that whoever feeds upon these zooplankton. Okay, the next is resource always need not to be a limiting for competition to occur. Interference, competition feeding efficiency of one species might be reduced due to inhibitory or interfering presence of other species. So it is not like that resources are always scarce. For example, uh, let us take an example of a forest. This is a forest. In this forest, here resides two species. One is that of jackal and other is that of lion. So what happens is there are also let it be as 10 number in zebras. So 10 zebras are there, one jackal and one lion is there. What happens is lion feeds upon the zebra, and it is not like that there are no more food available. 9 is still left. But this jackal is unable to feed upon them. Why? The first reason is as soon a jackal kills a zebra, the lion may interfere there. Lion may interfere if the lion goes to that killed animal. So jackal has to move on. No, he cannot feed upon the its prey. Why? Because if it claims its prey in presence of lion, it is like the jackal may himself be a prey to lion. Okay. So, in case of this, there is no scarcity of resource, no scarcity of food, but still the presence of this lion and species lion is itself uh, more than enough for the jackal to have some inhibitory effect, isn't it? So, this is the point what it means to say. Next is Gauss competitive exclusion principle. What it says is, it says that two closely related species competing for same resources cannot coexist indefinitely. What it means is, if there are two species which are closely related, and if they are competing for the same thing, same resource, it is not like they can coexist for a longer time. One of them must have to exit. Oh, let us take an example. For example, uh, just imagine as if all the plains are full and there is only top mountains which are not dense yet. पूरा पूरा प्लेन फुल हो गया है, जितने भी प्लेट्यूज है सब फुल हो गए हैं, अभी सिर्फ माउंटेन बचा जहां पे अभी ह्यूमन सेटलमेंट उतना ज्यादा नहीं है. तो what will happen sooner that all the people who will not get any land on this plain will start moving upwards to the mountain, and there too what you will see is, क्योंकि दोनों ही इंसान हैं, जो वहां पहले से रहते हैं वो भी और हम हैं वो जो जा रहे हैं वो भी, वेरी क्लोजली रिलेटेड इजंट इट. तो जब ऐसा होगा तो एक समय में वो भी फुल होने लगेगा माउंटेन, और तब शुरू होगा एक नया दिक्कत, जो होगा कि अब आप एक जगह के लिए आपस में compete करोगे, लड़ोगे, और चूंकि आपका कंपटीशन सेम तरह का है तो आप बहुत ज्यादा समय तक नहीं टिक सकते हो, किसी एक को तो हटना ही पड़ेगा क्योंकि दोनों बराबर के ताकतवर हैं. ठीक है, तो ऐसा केस याद रखना. और गॉस यही बोले थे कि जब भी दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज आपस में compete करेगा सेम रिसोर्स के लिए, तो वो अनंत काल तक, लंबे समय तक एग्जिस्ट नहीं कर सकता साथ में. और जो भी कंपेटिटिवली इंफीरियर स्पीसीज होगा,
that will eventually be eliminated. Okay, so again, this is not like that it is only said, it is being experimentally proved by Gauss itself, and he performed his experiments on two species of Paramecium, Paramecium aurelia and Paramecium caudatum. Okay, so again, let us move on. Then comes the concept of coexistence. Coexistence says that some organism might evolve a mechanism to coexist by changing their feeding time or foraging pattern. That is, they partition the resource which is available to them. जैसे मान लो ये जंगल है, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, यहाँ दो स्पीशीज था जेब्रा का, यहाँ एक जेब्रा एक हॉर्स, दोनों ज्यादा डिस्टेंट रिलेटिव नहीं, क्लोज रिलेटिव है। तो होगा ये कि अब ये दोनों एक साथ रह रहा है भाई, तो एक साथ मान लो 100 जेब्रा 100 घोड़ा भी है, तो सब चाहेगा कि भाई हम घास खाएं, तो हम घास खाएं, तो पता चला आपस में घास खाते खाते झगड़ा हो गया। तो व्हाट विल हैपन दैट दे कैन कोएग्जिस्ट ओनली इफ दे चेंज देयर फीडिंग टाइम, या फिर दे चेंज देयर फॉर्जिंग हैबिट. One of them is eating the leaves, other one is eating the lower parts. Or it may be like zebra is eating at the night while horse is eating at the daytime. So again, this will reduce the competition in between two species, and so they can coexist. But this needs time, because uh, in longer time there may be some chances of being evolution to take place. So it is not like that ये लोग आपस में मिल बैठ के decide करते हैं. No, they evolve mechanism which takes time. So again, five closely related species of warblers avoid competition by changing crossing pattern, and this was given by MacArthur, a very great scientist in ecology. Now again, habitat diversification can also reduce competition. Means they diversify the habitat. One is living, for example, take this case only. It may happen that zebra feeds in the central part while horse fits in the outer part. So this will also reduce the competition. Again, so there are some circumstantial evidences where which supports exclusion of a species due to competition. Means due to competition, one species is being eliminated from the habitat for every time. Okay, so for example, introduction of goat resulted in exclusion of Albington tortoise from Galapagos Island. What happens is the goats feed upon the grasses which are for the food of Albington tortoise. So goats feed them. What happens is Albington tortoise died of hunger, and there is no more Albington tortoise from in Galapagos Island. Again, competition between Balanus and Chatham Chatham Malus on rocky coast of Scotland. This is again given by Colonel. Cornell. Okay. Now again, another concept: competitive release. So, mind it always occurs in population of a less distributed species. So, what happens is when the superior competitor is experimentally removed from the that area, it leads to dramatic increase in population of competitively lower species. So the competitively inferior species dramatically increases its population when competitively superior partner is removed experimentally. Okay, so this is called competitive release. इसमें क्या होता है कि अगर आप मजबूत वाले स्पीसीज को एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ समय के लिए हटा देंगे किसी एरिया से, तो उस एरिया में जो कंपटीशन में थोड़ा जो इंफीरियर था उसका नंबर अचानक से बहुत बढ़ जाता है.
So this is called competitive release. Again, the term predation. Predation, as you know, it is again a type of a negative interaction. One is having a food, एक का फायदा है, दूसरा का जान जा रहा है, नुकसान है. Interaction between species involving killing and consumption of prey. What does predation does? Transfer of energy from one trophic level to the other. Again, herbivores are also not very different from predators. Why? Herbivore भी तो घास खाता ही है, तो herbivore भी तो किसी और को मार के खा ही रहे हैं. Again, they keep population under control. So what happens is, अगर आप किसी जगह से उसके predator को हटा दीजिएगा, तो जो प्रे है उसका नंबर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि वो इकोलॉजिकल बैलेंस को बिगाड़ देगा. जैसे मान लो अगर शेर नहीं रहेगा तो इतना ज्यादा हिरन, इतना ज्यादा जेबरा हो जाएगा कि सारा घास ही खत्म हो जाएगा, और फिर वो आपस में लड़ेंगे खाने के लिए, भूखे तड़प के मरेंगे. तो आ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्रेडेटर का कि वो प्रे का नंबर को कंट्रोल में रखता है. अच्छा, प्रीडेटर है उसी का फायदा है कि वो स्पीसीज में डाइवर्सिटी मेंटेन करके रखता है. कैसे? क्योंकि वो उस स्पीसीज में इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन को घटाता है. रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमॉन्ग प्रे स्पीसीज. अगेन, प्रीडेटर हमेशा ही प्रूडेंट नेचर होता है. प्रूडेंट मीन्स ये कभी भी अपने प्रे को ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करता. मतलब ऐसा नहीं है कि शेर डेली एक शिकार कर रहा है, एकदम उसका मूड हुआ कि नहीं आज पार्टी करते हैं, पकड़ के 10 जेबरा मार के खा गए. ऐसा नहीं होगा. वाई? क्योंकि अगर ऐसा 10 शेर है या 100 शेर है, सबको को पार्टी करने का मन कर गया, तो फिर एक दिन में 1000 जेबरा साफ. एक दिन में 1000 जेबरा जो साफ हुआ है, उस नंबर को फिर से आने में नए बर्थ के थ्रू कम से कम 2-3 साल लग जाएगा. तो ऐसे तो साल में अगर 4 बार पार्टी कर लिए तो 4 जेबरा साफ हो गया, और बाकी जो बचा 365, तो 5 बार कर लेते हैं, 5000 जेबरा साफ हो जाएगा. और बाकी जो बचा 300 दिन, 300 गुना 100, 3000 जेबरा, और मतलब 8000 जेबरा एक साल में खत्म. तो पॉपुलेशन बहुत तेजी में डिक्लाइन होगा ना, तो फिर खत्म ही हो जाएगा जेबरा. और एक समय में जैसे ही जेबरा खत्म हुआ तो फिर शेर भी गया, खाना ही नहीं है. तो कोई भी प्रे कभी भी अपने सॉरी कोई भी प्रेडेटर कभी भी अपने प्रे को ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करता, ज्यादा नहीं खाता है, कंट्रोल में मार के खाता है. नाउ अगेन, तो भाई प्रे का नसीब इतना बुरा थोड़ा ना है कि वो सिर्फ मरेगा, भगवान उसको भी कुछ दिए हैं. So what happens is this prey species have evolved various adaptations so as to protect itself from its predator. The first is camouflage. What happens in this is they hide themselves from their prey in the surrounding. आप सब कैमलियन का नाम सुने हैं, गिरगिट. जहां पे जाएगा उस जगह के हिसाब से अपना रंग बदल लेगा. गिरगिट जहां पे जाएगा उस जगह के हिसाब से अपना रंग बदल लेगा. तो ये सिर्फ एक रंग बदलने का बात हुआ, उसमें भी बहुत सारा टाइप्स अवेलेबल है. जैसे ये जो ग्रास हॉपर है, ये हरे पत्ते की तरह दिखता है, इसको कोई पहचान ही नहीं पाता कि ग्रास हॉपर है. ये जो प्रेइंग मैंटिस है, ये हरा पत्ता और साथ में डंठल दोनों के जैसा दिखता है. ये जो डेड लीफ बटरफ्लाई है, लगता है जैसे कि सूखा हुआ कोई लीफ है, जबकि है जिंदा बटरफ्लाई. ये जो स्टिक इंसेक्ट है, ये डेड लीफ की तरह दिखता है. अब बताओ, कोई भी जब आएगा शिकार, उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये बटरफ्लाई है या इंसेक्ट है या ग्रास हॉपर है, तो वो बच जाएगा, है ना. उसी तरह मोनार्क बटरफ्लाई, ये अपने आप को शिकारी चिड़ियों से छुपाने के लिए ये बहुत ही टॉक्सिक ग्लाइकोसाइड जो है, बहुत टॉक्सिक ये ड्रग है, मिल्कवीड में मिलता है. कैटरपिलर स्टेज में उसी पे खाती है. उससे क्या होता है कि उसका लार्वा में इसका टॉक्सिन चला जाता है, और अब वो डराती ऐसे है कि भाई अब चिड़िया जैसे ही उस मोनार्क बटरफ्लाई को खाएगी, तो चूंकि वो जहरीली हो गई है, वो चिड़िया फिर मर जाएगी. बच गई मोनार्क बटरफ्लाई, अब तो चिड़िया खाएगी ही नहीं. उसी तरह कैलोट्रोपिस, निकोटीन, कैफेन, फिनिन या स्ट्राइकिन, इन सभी जो प्लांट्स हैं,
इनमें बहुत ही खतरनाक ग्लाइकोसाइड्स हैं जो हार्ट अटैक करा सकते हैं। इनसे होता है क्या कि अब कोई भी जानवर या गाय या भैंस या शिप या हॉर्स या जेब्रा कोई भी जब इन सब प्लांट को पे ग्रेज करने जाएगा तो सूंघ कहीं छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है एक तो कैफीन खा लिए या निकोटीन खा लिए तो नशा आएगा तो आएगा नहीं, ऊपर पहुंच जाएंगे, हार्ट ही रुक जाएगा। अगेन देखो ये जो एसोसिएशन ऑफ बुल हॉर्न है, ये बुल हॉर्न एक इंसेक्ट है जो कि एंट के साथ एसोसिएशन में आता है, ताकि बुल हॉर्न सॉरी इंसेक्ट बोल रहे, एक प्लांट है जो कि एंट चींटी के साथ रहता है कि कोई भी जानवर उसको खाए नहीं, अगर खाएगा तो चींटी हमला कर देगी। अगेन इज पारासिटिज्म। अभी तक हम लोग देखे कि भाई पाला कमेंसलिज्म था ना, क्या था? कंपटीशन था, ठीक है, पहला कंपटीशन पढ़े, फिर पढ़े हम लोग प्रिडेशन। प्रिडेशन के बाद प्रिडेशन से बचने के लिए प्रे को भगवान क्या क्या दिए हैं वो पढ़े। अब पढ़े पैरासिटिज्म। इसका मतलब होता है कि भाई एक का फायदा और एक का नुकसान। जाहिर सा बात है, जिसको फायदा हो रहा है, जो पैरासाइट है उसको खाना मिल रहा है, और जिसपे पैरासाइट है उसका नुकसान हो रहा है। तो ये भी पॉजिटिव निगेटिव इंटरेक्शन है। इसमें क्या होता है देखो। अच्छा, सबसे पहला बात, पैरासाइट्स अक्सर होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। मच्छर से भी वार्म ब्लड को खाता है, काटता है, सबको नहीं। तो जो पैरासाइट है मॉस्किटो या जो प्लाज्मोडियम है, ये प्लाज्मोडियम जो मलेरिया कॉज करता है सब में नहीं करता, सब में करता है। तो वो होस्ट स्पेसिफिक होता है। आगे देखो, पैरासाइट तीन तरह का। एक तो पैरासिटिज्म जो आपके शरीर के ऊपर रहेगा और आप पे पैरासाइट होगा, जैसे लाइस, खटमल, डॉग्स, ये सब पे भी कीड़ा लग जाता है, टिक्स, है ना। खसकटा प्लांट पैरासाइट है, इंपॉर्टेंट है। अगेन इंडो पैरासाइट शरीर के अंदर है लेकिन पैरासाइट है, जैसे कि जोंक सुने होंगे, पेट में जोंक हो जाता है, लीवर फ्लू, प्लाज्मोडियम मलेरिया वाला बॉडी के अंदर जाता है और आप में पैरासाइट है। तीसरा इज ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म में क्या होता है कि कोई जानवर अपना नेस्ट खुद नहीं बनाता, अपना छत्ता खुद नहीं बनाता, ये किसी और के छत्ते में अपना अंडा देता है। और आप सब जानते हैं इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है कुकू, कोयल। ये जो कोयल है वो अपना घोंसला नहीं बनाती, दे ले देयर एग्स इन द क्रोज नेस्ट, कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है। और खास बात सोचो, दोनों का अंडा एग्जैक्टली सेम होता है, तो कौवा को पता चल जाएगा ना तो फोड़ देगा। दोनों का अंडा सेम। बेचारा क्रो को पता ही नहीं चलता कि जो अंडा है वो उसका है या कुकू का है। तो यहाँ पे देखो को इवोल्यूशन भी हो रहा है। अगर इन दोनों में से किसी में भी ऐसा चेंज आ गया कि उसका अंडा बदल जाए, कलर में, साइज में, किसी भी चीज में, तो एक स्पीसीज खत्म हो जाएगा, है ना। कोयल खत्म, कैसे पता? भाई अगर मान लो कोयल का ही अंडा में चेंज आ गया, अब तो कौवा पहचान लेगा देख के, क्योंकि वो कौवा के अंडा की तरह नहीं रहेगा, कोयल गई। या अगर कौवे के अंडे में चेंज आ गया तो जाहिर सा बात है फिर भी पहचान लेगा कि कोयल वाला अलग है, मार देगा। तो बचने का उपाय क्या है कि इन दोनों में इवोल्यूशन हमेशा एक जैसा होना चाहिए। अगर कौवा का अंडा का साइज छोटा हो गया तो कोयल का अंडा में भी वैसा ही इवोल्यूशन जरूरी है, नहीं तो खत्म। ठीक है, इसी को बोल रहे थे को इवोल्यूशन, हम लोग इवोल्यूशन में इसको डिटेल में पढ़े थे। अगेन हाइपर पैरासिटिज्म, इसमें क्या होता है कि वायरस किसी बैक्टीरिया पे पैरासाइट। ठीक है, चलो। अगेन अमेंसेलिज्म। अमेंसेलिज्म तो और मतलब ये सबसे गिरा हुआ काम है। सामने वाले का कुछ कोई फायदा नहीं लेकिन दूसरे वाले को नुकसान कर रहे हैं। मतलब ये कि आपका कोई एक ऐसा हरकत जिससे आपको कोई फायदा तो नहीं पहुंचा, सामने वाले का नुकसान हो गया। दिस इज एमेंसेलिज्म। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल सुनो, समझ में आ जाएगा क्या होता है। एग्जांपल है एंटीबायोटिक फ्रॉम पेनिसिलिन। पेनिसिलियम नोटेटम, ये फंगस है। ये क्या है? फंगस। देखो इससे एक एंटीबायोटिक निकलता है, पेनिसिलिन। अब खास बात यह है कि ये जो एंटीबायोटिक निकलता है, इससे इस फंगस को तो कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल नहीं।
तो इससे उस फंगस को कोई फायदा नहीं है, लेकिन बेचारा बैक्टीरिया लोगों का नुकसान हो जा रहा है, मर जा रहा है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एमेंसेलिज्म। Again, moving forward, next is positive interaction. Here again is of three types. First is commensalism, एक का फायदा दूसरे का कुछ नहीं। एग्जाम्पल देखो, कई बार क्या होता है कि जैसे जो शार्क या वेल है, बड़ी मछली है, इन शार्क और वेल के पास ये जो शार्क और वेल है, वाह, आज तक हम जितना भी मछली बना उसमें से सबसे सुंदर। इसे बड़ी बड़ी मछलियों पर ना कई बार छोटी छोटी मछलियां जाके चिपक जाती हैं। अब भाई ये करती क्या है, होता यूं है कि जो शार्क है, जब ये शिकार करके किसी को खाया तो मांस का कुछ टुकड़ा पानी में फैलता है। ये मछली चुपचाप तभी उसके शरीर से उठती है और जाके इसको खा लेती है। अच्छा, इस ये छोटी मछली है, लेकिन इसके ऊपर रहने का उसको फायदा ये हो रहा है। देखो, शार्क को कोई नुकसान तो नहीं हुआ, जो खाना था वो खाया, जो फेंक दिया था, वो जो उसका बच गया था उसको खाई ये छोटी छोटी मछली। ठीक है। और इन छोटी मछलियों को एक और फायदा ये होता है, क्योंकि ये शार्क के शरीर पे है, तो कोई और मछली इन पे हमला करने का हिम्मत नहीं करती। अब जो भी इसको मारने के लिए शार्क के शरीर पे आएगी, शार्क उसको नहीं खा जाएगी। ऐसे तो ये एक का फायदा और दूसरे का कुछ नहीं। म्यूचुअलिज्म, दोनों का फायदा। सबसे बढ़िया एग्जांपल लाइकेन, ये फंगस और एल्गी का इंटरेक्शन है। फंगस को खाना मिल रहा है, एल्गी को घर मिल रहा है, दोनों साथ में है और दोनों का फायदा है। म्यूचुअलिज्म। प्रोटो कोऑपरेशन, अच्छा म्यूचुअलिज्म में ये ऑब्लिगेशन है, ये देखो इंपॉर्टेंट बात है। म्यूचुअलिज्म एक ऑब्लिगेटरी रिलेशन है, मतलब दोनों में से कोई भी एक को अगर आप मार दोगे तो दूसरा भी मर जाएगा। लाइकेन में से एल्गी निकाल दी, फंगस भी मर जाएगा। लाइकेन में से फंगस निकाल दी, एल्गी भी मर जाएगा। तो ये एक ऑब्लिगेटरी रिलेशन है। जबकि अगर हम प्रोटो कोऑपरेशन में बात करें तो ये भी दोनों का प्लस प्लस है, मतलब दोनों का फायदा। लेकिन ये नॉन ऑब्लिगेटरी है तो भी ठीक, नहीं तो तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। जैसे मैं एक बार एक कहानी आपको सुनाए थे कि क्रोकोडाइल शिकार करता है, शिकार करके पेट भर गया एकदम, दबा के खाया है। उसके बाद वो सी शोर पे या रिवर शोर पे आता है, पानी के बाहर आता है, धूप में बालू पे मुंह फाड़ के बैठ जाता है। एक नन्ही सी चिड़िया होती है, प्लोवर बर्ड, पहले भी बताई थी ये कहानी। वो चुपचाप उसके मुंह के अंदर जाती है, दांत के बीच में जो फंसा हुआ है मांस उसको निकाल के खाती है। और वो चिड़िया आती है, उसके मुंह से मांस निकाल के खाती है, जाती है, लेकिन क्रोकोडाइल कभी भी अपना मुंह बंद नहीं करता, उस चिड़िया को मार के नहीं खाता। तो दोनों का फायदा है। क्रोकोडाइल का दांत साफ हो गया और उस चिड़िया का खाना मिल गया। तो अच्छा, अगर चिड़िया नहीं आई तो क्या क्रोकोडाइल मर जाएगा? नहीं। तो ये प्रोटो कोऑपरेशन, लेकिन नॉन ऑब्लिगेटरी। दोनों का फायदा तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर नहीं होगा तो मर ही जाएगा। ठीक है। चलिए, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, आई गेस वी हैव बीन completed this chapter. Again, we'll beginning with the next chapter in next lecture.